of AI, we also used that how to integrate Python script with the hardware. We give this kind of training to our students so that they can handle or program different kind of hardware things that such that they can automate also, such like drone programmings and everything. And apart from that, how to build a game and everything, this kind of stuffs we give small basic training to them. Part by part they can understand over that. That is basically in Python with what you can say machine learning and AI. So this is all the things we are introducing to our what the students, how they can implement it and what and scale up their things. Even a small amount of what you can say small program we also introduce of comparative coding, so that they can have the advancement of building the logic, how they can think of that, how this can process without taking much help from Google or Chat GPT. Yeah, so this is all about from my side. Handing over to you, Prashanjit. Okay, thanks, Jack. Uh, and basically, we have Pranay Sharma, basically, who is working in PSU, basically, and he has an experience of, I guess, 5 years into STEM education and robotics education. And basically, he is a technical advisor in IIT ISM Dhanbad. So basically, I will be introducing Pranay Sharma. Pranay, are you there? Thank you, Prasanjit. Good evening, all of you. Myself, Pranay Sharma from STEM Education. 1 minute, share a screen. Prasanjit is not enabled to share my screen. Kindly enable it. Okay, just a minute. And like if anyone has any doubt, please feel free to ask any questions. Yes. Okay. My screen is visible. Sir and ma'am, are we audible? Please kindly acknowledge so that we can understand that like you all are audible. Okay, okay, thank you. Yes. Hello. Myself, Pranay Sharma, and I graduated at Computer Science Engineering from BIT Sindri. And right now, I'm working in PSU, in BCCL, and in System Department. And right now, I have part-time work in with STEM education in the Nobly School Group to teach students and teacher how robotics and AI work. I have experience in industrial automation in 2 years and embedded system in 3 years and IoT, the Internet of Things of 3 years and robotics automation in 4 years and AI ML is or also 4 years. I teach around 12 colleges and is 35 plus schools and two NGOs. And out of India, I teach two UK students. They meet with the vast to learn electronics and embedded system with using AI. However, the system will help you to learn and implement yourself to get a knowledge about how the AI work and how the functionalities of system will work to process in any data and how it will be implemented in future aspects. I also get Khanik Samban in BCCL for implementation and development of software. Name is Utkarsh for preventing the corruptions. Next. Anyone know what is AI? First, may I audible? Na? Anyone know what is AI? No. And
Okay, then I explain. A computer algorithm has performed incredible tasks with an high accuracy and massive scale using a human like intelligence. जैसे हमारे पास ह्यूमन जैसे इंटेलिजेंसी होता है, इसे मशीन का ऐसा एल्गोरिथम होता है जिसके हिसाब से हम लोग एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। एल्गोरिथम डिजाइन करने के बाद हम लोग प्रोग्राम सेट डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, और इसी पाइथन स्क्रिप्ट को यूज करते हैं, आप इसी कोड को यूज करते हैं, हम लोग एक इंटेलिजेंसी बनाते हैं जो ह्यूमन के हिसाब से। ह्यूमन के हिसाब में क्या होता है, चाहे तो वो सही होगा चाहे तो वो गलत होगा, इफ और एल्स कंडीशंस को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो मेजर डिसीजंस ले सकता है। ठीक है, जो डिसीजंस को ले सकता है। जब यहाँ पर डिसीजंस मेकिंग पावर आ गया, इसका मतलब है कि वो उसके पास कुछ इंटेलिजेंसी आ गया जिससे वो कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने के बाद उसके साथ वो कुछ प्रोसेस करके कुछ एक मीनिंगफुल आउटपुट दे सकता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्क्रिप्ट पाइथन पे लिखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते इफ और एल्स के अंदर, कि ये अगर हो सकता है तो ये इसका रिजल्ट होगा, अगर ये हो सकता है तो ये होगा। इस स्टेप से हम लोग डेवलपमेंट करते हैं एक इंटेलिजेंसी, और दिस इंटेलिजेंसी रेफर एज एआई। सबसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको हम देते हैं। मेरे पास एक प्रॉब्लम सेट है, और इस प्रॉब्लम सेट के अंदर में मैंने 3 प्रॉब्लम को हम लोग डील करेंगे, और सबसे मेजर प्रॉब्लम्स जो अभी के रिजॉल्व हो चुका है और वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है हम लोग उसको डील करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम सेट से हमारे पास कि Parna, actually your screen is not visible. Please. माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल, 1 मिनट 1 मिनट। It is visible right now? Yeah, perfect. Okay. Uh, uh, the problem set. The problem statement. How I implement the AI. We implement the AI with the help of with the what 1 minute. How we implement the AI. First, we have to make the what is the problem statement, कि हमारा पर प्रॉब्लम क्या था और why we use AI and how implement AI system with the help of embedded system. First of all, the problem statement. There I have 3 problem statement. First problem statement is attendance of student and employee. Second is the crime investigation, and third is hospitals and healthcare. First of all, we focus in attendance and student management system. How it's work? जब आप कहीं पर ऑफिस में काम करते हैं, चाहे स्टूडेंट्स जहाँ पर हैं, वहाँ पे जब अपने स्कूल्स को जाते हैं तो उनकी अटेंडेंस होती है। कैसे अटेंडेंस होती है? सबसे फर्स्ट पार्ट है अटेंडेंस की, कि आप स्कूल गए, ठीक है, आप ऑफिस गए, तो आपके पास एक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं जहां पर आप चाहे तो आपके इंस्ट्रक्टर जो टीचर है वो स्कूल में स्टूडेंट क्या करते हैं कि टीचर एक रहते हैं, उसके बिहाफ में आपको अटेंडेंस मार्क किया जाता है। बट ऑफिस में क्या होता है कि जब आपका वहां पर एक खाता होता है जिसको बोलते हैं बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, उसमें क्या होता है आप अटेंडेंस मार्क करते हो, अपने सिग्नेचर करते हो, और आप वो अटेंडेंस बनाने के बाद आपका अटेंडेंस बन गया, आप उसी के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाता है। बट ट्रेडिशनल व्यू में क्या हो रहा था कि इसके अंदर में क्या होता था, हमारा इस बुक ऑफ रिकॉर्ड में टेम्परिंग हो जाता था, कोई आया नहीं और वो मार्क कर दिया अटेंडेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, जो आपका हाजिरी बाबू होता है जो अटेंडेंस उस
क्लर्क होते हैं वो इसमें क्या करते थे, अपने से ही किसी और का अटेंडेंस बना देते थे। इसके थ्रू क्या होता था, यहाँ पर जो प्रेजेंट नहीं होता तो वो भी प्रेजेंट दिखा देता था ऑफिस के अंदर, और वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होते थे और वो अपना पूरा ड्यूटी सही से नहीं करते थे ऑफिस में। स्टूडेंट के केस में भी ये होता था, जो आपका स्टूडेंट आया नहीं ऑलरेडी उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट दिखा देता था, और जब स्टूडेंट फाइंड आउट करते थे तो स्टूडेंट कॉलेज आया नहीं, स्कूल आया नहीं, तो हाउ वी मेक द अटेंडेंस। तो इसी चीज प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग को एआई यूजिंग अटेंडेंस सिस्टम को लाया गया, जिसमें बायोमेट्रिक सिस्टम एक बहुत बड़ा रोल आता है। और इसके अंदर जो सिस्टम होता है बायोमेट्रिक्स का, इसके अंदर एआई मेथड यूज होता है, जो हमारे फेस रिकॉग्नाइजेशन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन को लेके एक आइडेंटिफिकेशन को मैच करने के बाद वो अटेंडेंस मार्क करता है और इंटरनली सिस्टम के अंदर, और इसी वजह से आप पूरा अटेंडेंस सिक्योर हो जाता है। इसमें डाटा को टेम्पर नहीं किया जाता है, बिकॉज ये रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर फीड होता है और इसको एक डेटाबेस मॉनिटर करता है, जिससे आप डेटा को टेम्पर नहीं कर सकते। एक ऑथराइज ही यूजर, उस पर्टिकुलर एडमिन चाहे प्रिंसिपल ही उसको एक्सेस कर सकता है, बाकी और कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इट नॉट एक्सेसिबल फॉर एनी पर्सन, वहां पर कोई भी नहीं है, सिर्फ आपके जो एडमिन है वही एक्सेस कर सकते हैं। हाउ ए बायोमेट्रिक सिस्टम वर्क, और हमारे पूरे सेशन में मैंने 7 years to 8 years मैंने इसे पढ़ाया है, और डेवलपमेंट कैसे होता है ये पूरे सिस्टम को, और मैंने IISM IIT में भी एडवाइजर हूँ, तो वहां पर भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो एआई के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है ये फर्दर में अभी हम लोग सीखेंगे, और ये छोटा सा ये बात रहेगा कि कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बायोमेट्रिक सिस्टम, अब बायोमेट्रिक सिस्टम का इंटरनली काम कैसे करता है और एआई फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सीखते हैं। देखिए बायोमेट्रिक सिस्टम कैसे काम करता है। बायोमेट्रिक सिस्टम में क्या होता है, सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको इनरोलमेंट करना होता है। कोई भी इंसान अपना सबसे पहले इनरोलमेंट करेगा, और इनरोलमेंट करने के बाद वो क्या करेगा, एक डेटा सेट क्रिएट करेगा, और वो डेटा सेट मास्टर डेटा होता है। उस मास्टर डेटा को हम लोग एक अलग डेटाबेस पर रख लेते हैं, और उस मास्टर डेटा को रखने के बाद उस डेटा को सेव कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, जिसको हम लोग एक मास्टर डेटा के नाम से मानते हैं, चाहे आप क्लास ऑफ पर्टिकुलर मास्टर डेटा भी बोल सकते हैं। अब वो मास्टर डेटा आपके पास आ गया। अब जब जिस टाइम हमको अटेंडेंस लेना है, जिस टाइम पीरियड के अंदर, उस टाइम जब हम उसी पर्सन को वेरीफाई करेंगे तो मास्टर डेटा निकलेगा, और हमारा जो मास्टर डेटा है और हमारा जो टेम्पलेट है, जो जिस टेम्पलेट पे सेकेंड बार मैंने जब वेरिफिकेशन करना, वो दोनों अगर 100% उस पैटर्न को मैच करता है, वो डेटा सीट और वो डेटा स्ट्रक्चर को मैच करता है, तभी आपका अटेंडेंस एक्सेस होगा, नहीं तो रिजल्ट हो जाएगा नो। और ये रिजल्ट नो होने का मतलब है कि वो आदमी नहीं है। ठीक है, तो ये पैटर्न का अंदर में जो फंक्शनैलिटी चलते हैं, ये न्यूरो नेटवर्क से भी आप कर सकते हैं जो एआई के अंदर है। ठीक है, और इसमें केनन का भी थ्योरी लगा सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग पैटर्न को रीड करते हैं कि यही पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखा जाता है कितने परसेंट मैच करता है। आप जब एंड्रॉइड में आप अपने फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को लगाते होंगे तो उसके अंदर भी आप पॉसिबिलिटीज देखे जाते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इस इमेज को हमारे टेम्पलेट से मैच करने को, जो मास्टर डेटा है उससे, जो टेम्पलेट है, जितने परसेंटेज, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज 90 to 100% अगर मैच करता है, तभी वो एक्सेस देता है हमारा सिस्टम को प्रोसेस करते, हमारे सिस्टम को अनलॉक करने का। तो इस टाइम से हमारा सिस्टम काम करता है। जो मास्टर डेटा है आपका, वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर सिक्योर जगह पे स्टोर रहता है, ठीक, उसके सर्वर पे। अब ये लॉजिकल सिस्टम्स को का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शनैलिटी है, वो हम समझते हैं। जैसे आपने फर्स्ट टाइम जब लाइव फिंगर आपने डाला था तो वो सेंसर के थ्रू रीड किया गया था, सेंसर एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, सेंसर की तरह रीड किया गया था। और वो सेंसर्स क्या था, वो पर्टिकुलर सेक्शंस के जो इमेज थे, वो पैटर्न को एक पर्टिकुलर डिजिटल फॉर्म में चेंज कर दिया, क्योंकि आप जो फिंगर दिए वो एक्चुअली में वो क्या था, एक इमेज था। जहां पर एआई में इमेज प्रोसेसिंग एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जिस पर हम लोग सिखाते हैं कि इमेज को प्रोसेस कैसे किया जाता है, और ये हमारे स्कूल के टॉपिक में भी है कि प्रोसेस कैसे किया जाता है।
ठीक है। तो वो पर्टिकुलर इनपुट्स आउटपुट हमारा सेंसर ही लेगा और सेंसर प्रोसेस करेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर। ठीक है, अभी मैं आगे देखूंगा फिंगरप्रिंट सेंसर कैसे काम करता है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर क्या लिया, आपसे डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद क्या किया, फर्दर वो क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट हुआ। ठीक है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो अपना एक बेसिक लॉजिक हमारा हो जाता है बायोमेट्रिक्स का, वो लॉजिक इसमें अप्लाई हुआ और वो डेटाबेस में हमारा डेटा को भेजा। अब डेटाबेस में जब डेटा भेजा तो वहां पर कुछ एल्गोरिथम्स रन करेंगे। ठीक है, और वहां डेटा एक्विजिशन के बाद वहां पर सेपरेट किया जाएगा अलग अलग डेटास को, कि जो हमारा पास जो डेटा मिला है जिसमें से रॉ कंटेंट को हटा दिया जाएगा, जो जिसका कोई काम नहीं है, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है उसको रखा जाएगा। और फिर वहां पर डीएससीपी को यूज करते हम लोग मैच करते हैं उस डेटा को। अगर वो डेट हमारा टेम्पलेट से मैच होता है तो उसी टेम्पलेट को हम लोग यूज करते, हम लोग एक्सेस देते हैं कि ऑथराइजेशन ये एक्सेसिबल है कि नहीं है, और उसको आईडी को मैच करा के हम लोग इनपुट ले लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस को करने के लिए आपको एक हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगा, और इस दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का जरूरत पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर कैसा होगा, प्लेटफॉर्म कैसा होगा, हम लोग बेसिकली बायोमेट्रिक सिस्टम्स के अंदर वही यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर कैसा होगा, सॉफ्टवेयर मीन्स स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मीन्स हमको कोडिंग करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग उसको यूज करेंगे पाइथन लैंग्वेज। और जो प्लेटफॉर्म होगा हमारा वो होगा रास्पबेरी पाई, इसके अंदर हम उस स्क्रिप्ट को रन कराएंगे। रास्पबेरी पाई एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पूरे स्क्रिप्ट को रन कराते हैं एक इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आईडीई भी होता है और इसके अंदर हार्डवेयर इंटीग्रेशन सिस्टम भी होता है, और इसके साथ आप लोग एड ऑन जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीपीआईओ, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट के साथ, जिससे हमारा अभी फिंगरप्रिंट मॉड्यूल जैसे था उसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर। और विद द हेल्प ऑफ, चाहे तो आप यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप सीरियल कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, और चाहे नहीं तो आप एक और चीज से कनेक्ट कर सकते हैं जिसको हम लोग आरएफ बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू। वो और भी कम्युनिकेशंस के तरीके हैं, वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं, देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग, बट मिनिमम यूज जो होता है वो आपका यूएसबी होता है, सीरियल कम्युनिकेशंस होते हैं। तो हम लोग मॉड्यूल्स को कनेक्ट करेंगे, जो फिंगरप्रिंट मॉड्यूल है वो डेटा क्या करेगा, हमारा टीएक्सएन आरएक्स के थ्रू हमारे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर पहुंचाएगा जो रास्पबेरी पाई है। रास्पबेरी पाई क्या करेगा, जो मैंने पाइथन के स्क्रिप्ट लिखा है उसको वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो अपने पास जो डेटा रखा है उससे वो मैच कराएगा, और जो हमारा डिस्प्ले है वहां पर दिखाएगा इट विल बी मैच। तो हमारा क्या होगा, एक्सेस दे दिया जाएगा सिस्टम को कि हाँ ये इट इज एक्सेसिबल टू यूज दिस फंक्शनैलिटीज। अगर वो एक्सेसिबल नहीं है तो वो डिनाई कर देगा और बोलेगा यू आर नॉट ए ऑथराइज्ड यूजर। तो ये बेसिकली इस टाइप का मॉडल काम करता है हमारा। और थ्रू आउट दी हमारा सिलेबस के अंदर भी ये जितने भी चीज मैं बताया, मैं सिलेबस भी आपको दिखा देता हूँ। एज ये पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड है आपके आईसीएसई सिलेबस में, जो मैं कॉलेज और स्कूल में पढ़ाता हूँ। 1 मिनट में एक चीज आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक और मैंने एग्जांपल लिया अटेंडेंस सिस्टम का। एक और एग्जाम है क्राइम इन्वेस्टिगेशन। ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे इंडिया के लिए, कि इसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जिसको बोलते हैं फोरेंसिक और मल्टीमीडिया फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर यूज होता है एआई, जिससे हम लोग डीएनए का और स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं और उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पर्सन ये है कि नहीं। ये एआई मेथड और एमएल के थ्रू यूज होता है क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर में भी यूज होता है। सबसे बड़ा है कि अभी के जमाने में, क्योंकि मैं पीएसओ में ही काम करता हूं, तो अभी मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे बीसीसीएल में, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड में। वहां पे क्या होता है, इमेज को प्रोसेस किया जाता है और एआई का यूज करते हम लोग डिजीज को सैंपलिंग करते हैं और डिजीज को पता लगाते हैं। अलग अलग फोटो को सैंपल करते हैं, डिजीज का पता लगाते हैं कि क्या हमारा प्रेडिक्शन सही है और हम जितना टाइम
उसको एनालाइज करते एक डॉक्टर के थ्रू लगाएंगे, हमारा एआई सिस्टम विद इन मिनट हमको आंसर दे देगा कि ये डायग्नोसिस इसमें करना है। तो सबसे फर्स्ट फेज में क्या होता है, हॉस्पिटल हेल्थ केयर में आएंगे तो हमारा पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं एज अ कंसर्न डॉक्टर, और उसके बाद उसको एक इमेज रूम में ले जाते हैं जहां पर उसके फोटोग्राफिक होते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज का, और उसको हमारे सिस्टम पे डाल के और हम लोग क्या करते हैं उस सिस्टम से आउटपुट निकालते हैं कि क्या ये किस टाइप का बीमारी है और इसका क्या डायग्नोसिस हो सकता है और क्या प्रिस्क्राइब मेडिसिन है। तो ये हेल्थ केयर में भी यूज होगा एआई एंड एमएल। एज पर हम आपको सिलेबस का भी ओवरव्यू बता देते हैं कि हमारे सिलेबस का क्या ओवरव्यू है। राइट नाउ हम सिलेबस के गो थ्रू एक बार चले जाता हूँ। सिलेबस विजिबल है ना। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हम आप देखिएगा तो ये एक्चुअली क्लास आपका 9 का सिलेबस है, जिसमें रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। अब हम रोबोटिक्स को यहाँ पे ऐड किए हैं क्योंकि रोबोटिक्स इज वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट टू लर्न, एंड क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है क्योंकि सब जगह हमारा इम्प्लीमेंटेशन रोबोटिक्स के थ्रू होता है एम्बेडेड सिस्टम। और इसमें सबसे बड़ा बात है कि आप अगर आप रोबोटिक्स सीख रहे हो तो आपको इंटेलिजेंसी, क्योंकि रोबोटिक्स सिर्फ एक मॉडल नहीं होता है, उसके पास इंटेलिजेंसी भी होनी चाहिए। तो इंटेलिजेंसी के लिए हम लोग एआई यूज करते हैं। तो इसमें जो मेजर टॉपिक्स मैंने जैसे पढ़ा, जैसे मेरे पास मेजर टॉपिक्स है जिसको आपने अभी थ्रू आउट आपने देखा होगा कि डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमको डेटा का जरूरत पड़ेगा और किस टाइप का डेटा का जरूरत पड़ेगा। तो जो डेटा होगा वो ऑडियो वीडियो चाहे न्यूमेरिक में होना चाहिए। अगर ऑडियो वीडियो न्यूमेरिक पे है तो हम उस डेटा को लेंगे और उसको हम लोग कुछ सैंपल करके उसको कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन से बाइनरी लॉजिक्स टाइप पे में क्रिएट करेंगे और उस लॉजिक फंक्शंस को एक फंक्शंस बनाएंगे। देखिए सब कुछ है इसके अंदर, फंक्शंस बनाएंगे और इस फंक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हम क्या करेंगे। यहाँ देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को यूज करते इसमें कुछ कंडीशन स्टेटमेंट्स होंगे। देखिए यहाँ कंडीशन स्टेटमेंट, इफ एल्स नेट्स इफ एल्स, ये सब हम लोग अप्लाई करके इसका बेसिक कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स लूपिंग लगा के एक सेट ऑफ प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ एल्गोरिथम्स को रन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एल्गोरिथम है कंप्यूटर विजन, हाँ, और एक और एल्गोरिथम है हमारे पास, ठीक है, लर्निंग एनपीएल, ठीक है, और न्यूरो नेटवर्क। इसको यूज करते हैं इसी पर्टिकुलर लॉजिक से, जिससे हम लोग क्या करते हैं फर्दर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे प्रोजेक्ट को और इसका हम लोग आउटपुट दिखाएंगे। तो वेदर ये सारे कंसेप्ट को हम लोग एक पैकेज के अंदर डिलीवर करते हैं जिसमें सारे कुछ रहते हैं हमारे पास, और इस पैकेज को हम लोग फर्दर इम्प्लीमेंटेशन उस पर्टिकुलर पैकेज को हम लोग देकर समझाते हैं कि हाउ इट्स वर्क। जैसे हम लोग रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग सारा काम, और सारे टेक्निक्स को यूज करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। तो वो पैकेज के अंदर सारा कुछ होता है। थैंक यू एंड आई गिव यू फॉर द मीटिंग टू Prasenjit. Thanks, Pranay. Like teachers, like do you have any questions? Like my team is there to assist you all. Like if you have any questions, please ask. Like he has given an example like how like AI is used in daily to, I guess you all also use fingerprint on schools like when you come for the attendance part, like, but we don't know like what's the basic functionality. So that's the reason we chose this topic to explain you also a topic that is indulged in our day-to-day life, and it would be easy to understand the students as well. Basically whenever we give a live examples to the students, the student understand it in a much better way.
rather than just a bookish language. So that's the reason we chose this topic to explain you all. Like, and if you have any kind of doubts right now, please ask so that like Pranay can explain you all. Excuse me, sir. Yes, ma'am. Please go ahead. Actually, based on the syllabus, so which textbook and also you are preferring for this and all referring? Or in this training, each and every content we will cover it up? Yes, ma'am. The syllabus that is designed for ICSC, we will be following that. The syllabus that came. This is a new syllabus that is introduced right now. But these are just Yes. syllabus that we were doing on ICSC school, the Denobly school. Hello, good afternoon, Like, sir. yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, please let me address. Hello. Then I'll. Yes, ma'am. Am I audible to you? Bhagyasri, ma'am, Hello. am I audible? Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. You are audible. Please go ahead. Hello. Guys, am I audible? Yes, sir. Clear. Hello. Okay. So, yes, I guess, ma'am, you have Can an you internet can issue. I'm audible, sir? Yes, ma'am, you are audible. You are audible perfectly, and I guess you have internet issues. I guess. Please rejoin, ma'am. Please rejoin. Hello. If it's You are audible, ma'am. सर ये जो टॉपिक 4 है जिसमें यूज ऑफ टिंकर कार्ड विजुलाइज द मोशंस ऑफ द components and design, you are going to send us the kit and accordingly we will do these things? Yes, ma'am. See, the kit is like the ma'am. See, the kit part is a different part. Basically, the kit are available on internet as well. We will be sharing the link. If you require the kit from our end, we will be also providing the kit that is seen by other departments. So basically, today our agenda of this meeting was to show like how we are collaborating in this field. Like the syllabus are introduced now, but from past 2 to 3 years, we are teaching these things in the schools of ICSC zone. Like Denobly schools come under ICSC zone. So basically, we are not into ICSC only. We are into CBSE, ICC, even JAC board, and even in WB boards as well. So basically, we are having like a platform of our own, and basically over there, like our curriculum is like of depend upon the classes, like for which classes we are going to deliver them the knowledge. So basically, that depends upon that. So right now, see, ICC has given an syllabus. They will be following this. So obviously, we'll be following that. And ThinkerCAD platform, ma'am, it's a very common platform. If an engineering student, whoever starts coding or or design development of like robotics, they basically come into ThinkerCAD platform. So that is a very old platform that are used by us and by our team also. So no worries in that. And yes, ma'am, like I'll be addressing your question, Sibyl ma'am. Basically, these questions that you asked, the AI part of attendance one. Basically, this example was given due to the refer context of AI that is being introduced in ICSC. So basically, this kind of topics we are already covering up. So basically, what happens, ma'am? Like we are over here, like we don't want to make our students an assemblers. Basically, everything is available on internet, in Flipkart, everywhere. You can Right. Google it and you can buy the things. You can do the things. But we are not here to assemble the things. Like I would be giving an example. Like you all have dustbins on your houses, right? Yes, yes. So like what we teach to the student, like don't buy a new dustbin. If you are having a bucket on your home, a used bucket, a old bucket, use that bucket to automate that bucket to a smart dustbin via Arduino, via sensors and all. So basically we try to make them innovators, not assemblers. And by using the waste part of your the waste particles, the e-waste, the plastic waste that are available on house, on society. Basically, we are here to do good thing for the society, how we can help the society with robotics and AI. So basically, we are into that, and we would like to train you all regarding this only, ma'am.
so that you all also can deliver the same things, so that you can get a good connectivity with the students. Basically, when it comes to AI and robotics, few topics are there that are a bit boring when they come into IC diode, and basically that things are need to be memorized basically, like in IC which port comes for which functionality. So that things needed to be learned. So basically that's the reason we brought up in a way, in a structure, so that we can give them live examples. And if you will be if you all also know the live example of AI and robotics, so you all also can explain the things to the students, like how this will be helpful to the student and how the students can grab the things. So our main agenda was not of like biometric. We are having our own biometric. We do build that circuitry. We do have that prototype as well. So basically, as we are a robotics organization, so we do research on these all things. So basically, that would be helpful for the students as well. Like the students of like Denobly, right now they had a very small competition of like zonal competition. I guess you would be knowing of, like ICSE conducts zonal and regional levels competitions. So they were having quiz competitions. So ma'am, ma'am and sir, basically we introduced buzzer system that were manually designed by the students over there. So basically what happens, ma'am, we want to introduce the students to this platform. Come and design and work with us. That's our main motto. And we are not here to make them assemblers. Like we are having drone in Flipkart, we can buy over there, and you can like fly it on the sky, and like you can do like video shooting and all. But if anything happens, the students cannot troubleshoot it, because they don't know the basic idea, like which motor is being used, what technology is being used, what is the function of quadrocopter and all. So basically over here we basically teach them the each and every part, how it will be useful, which part has what kind of functionality. And secondly, like we are having we also have 3D printing machines. So basically if we are giving a workshop on like drone technology, so basically we design that drone parts in 3D printing machine, so that they can understand that this part has what use and what not, and how 3D printing is much essential nowadays. Like ma'am, I would be giving a very small example. Like as China is making like many things, like whatever you will see in market, there is a replica of Chinese particle, like Chinese things. So basically how, like in over there, if you do a research over there, every household, like in every society there, you will be finding up 2-3 houses that they are making something or the other, they are supplying on the market. So basically how they are doing that, basically they have a specific knowledge into robotics and AI. So that's our main motto, to educate them. So ma'am, if you have any questions, please go ahead. Hello. Hello. Actually, hello. Can you hear me? Yes ma'am, yes ma'am, please go ahead. Sir, actually, I want to know exactly STEM is going to, you are representing STEM, right? Yes ma'am, our Yes. full team is representing STEM STEM, and yeah. ITs. Okay. Yes. So, STEM is going to provide the trainer training or something else, you mean, like we are teaching, we are computer teachers. Okay. Yes. So exactly what do you expect the teachers should, what kind of means educational qualification is required for teaching robotics in the computer, in the class or school or something? There must be some criteria, right? Yes, ma'am. See, if you are a BE or BTech student, that would be a better. Basically, this technical part knowledge are being shared on that educational institute, so that becomes a easy part for them to learn. So, like if you are a BE or BTech student, that would be easy. And even if you are into BCA, like see, if you have studied class 12, 11, 12 very properly, over there also we learn about IC and diodes like very properly. From 8 onwards we learn that all things. So like like the persons who have their basic very good, and you can get a certification from anywhere, like the organization who are providing that, so you can become that. And you need to have a practical, basically over here practical oriented knowledge is much necessary than bookish knowledge. Basically Yes, what happens, yes, correct. I will be providing you a circuit. Okay, but that Okay. circuit, when you are going to do it practically, you are going to assemble the wire from the pin number 14 to pin number 5. In that time, what happens, that time the issues come when Yes, basic knowledge matters a lot. Correct. yes ma'am, over